Good morning, students. Students, today we will read about the interrogative sentences. Okay. In last video we have read about the negative sentences. Now today we are going to study about the interrogative sentences. Okay. I told you before. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ in sentence chapter. Okay. Kinds of sentence. कि what is the interrogative sentence? So now I am going to repeat again. Okay. Let's see first. Interrogative sentence, definition of interrogative sentences. Okay, interrogative sentences or questions ask about someone or something. Okay student, interrogative sentences or questions ask about someone or something. Interrogative sentence किसी के बारे में और किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. A question always ends with interrogation mark. और जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा इंटरोगेशन मार्क से ही एंड होता है, ठीक है स्टूडेंट. यू हैव टू रिमेंबर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो when you form interrogative sentence, don't forget to put question mark. Okay, now let's see. These are some examples. Okay, so it is your book. So this is the assertive sentence. Okay, you can say these are examples of assertive sentences. Okay, in other words you can say statement. These are statements. So statement, these are statements. So इन स्टेटमेंट्स की हम क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे. सो हाउ टू फॉर्म इंटरोगेटिव क्वेश्चन, लेट्स सी. ओके, इट इज योर बुक. सो स्टूडेंट, हियर यू हैव टू चेक इज हियर हेल्पिंग वर्ब. सो इफ एनी सेंटेंस देयर इज हेल्पिंग वर्ब इज आर एम. सो फर्स्ट आई टोल्ड यू, so form interrogative sentence we have to write these helping verb before the subject. Okay, like see, is it your book? Okay, so you have to put question mark also. Is it your book? क्या ये तुम्हारी बुक है? Okay, because when we form interrogative sentence, helping verb we have to write before the subject. Okay, before the subject. So here it is subject. So before it we will write here is. Okay, so is it your book? And end of the sentence we have to put question mark also. तो क्या ये तुम्हारी बुक है? This is the answer. Okay, this is the interrogative sentence. Okay, so when we start any sentence, I told you that any sentence start with capital letters. Okay, so here is here, check it, is here in small, but when we start any sentence the first letter should be capital. Okay, now let's see second. She has a car. So in this type of sentence has है जिसमें दिखाता है पोजीशन शो करता है. in this type of sentences we have to use do does. Okay, we have to use do does. Here you can check, she is a singular subject. So with singular subject we will use here does. Okay, does she have a car? Does she have a car? Okay student, put question mark also. Does she have a car? क्या उसके पास कार है? क्योंकि हैज़ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, ठीक है ना. ये भी फर्स्ट फॉर्म है, बट ये शी यहाँ पे हैज़ यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे भी सिंगुलर है, पर यहाँ पे हमने डज यहाँ पे यूज़ कर दिया है, इसमें ई एस ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे हम इसकी हैव फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है. सो let's move on the next sentence. They can solve this sum. कि वो उस सम को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे कैन, जब ये आपके मॉडल्स आते हैं तो मॉडल्स के बाद में आपको मॉडल्स आपको सब्जेक्ट के पहले लिखना होता है, ठीक है. सो हियर कैन दे
solve this question। क्या वे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिसन स्टूडेंट, वापस आप देखो यहाँ पे कैन को हमने बिफोर द सब्जेक्ट लिखा है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, दे वर माई क्लासमेट्स। दे वर माई क्लासमेट, हियर इज अ what is this verb? We have to write this helping verb before the subject. So were they my classmates? ओके, वर दे माई क्लासमेट, क्या वो मेरे क्लासमेट थे? तो यहाँ देखो स्टूडेंट, आप यहाँ से आप बिफोर द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट दिस हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। ही विल गो टू मुंबई, चेक इट, ही विल गो टू मुंबई। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? गो है, और गो से पहले यहाँ पे क्या है? विल हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सो हियर विल वी यूज बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। Will he go to Mumbai? Okay, will he go to Mumbai? Okay, let's see. She takes a bath. She takes a bath. Okay, तो यहाँ क्या, यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। So in this, because this is the simple present. Okay, दिस वर्ब टेल अस कि सेंटेंस, कि ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो हाउ टू फॉर्म इट्स इंटरोगेटिव? सो इट्स हेल्पिंग वर्ब व्हेन वी फॉर्म सिंपल प्रेजेंट। हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? डू डज का यूज़ करते हैं। डज हम लोग करते हैं सिंगुलर के लिए और डू हम करते हैं प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो इसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज आएगी। सो डज शी। अब यहाँ से हमें एस को, यहाँ पे एस को रिमूव करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि डज यहाँ पे लिखा है ना। तो डज शी टेक अ बाथ? ओके स्टूडेंट, here she went to market. She went to market. Here this is V2. This is V2 here. This is V1. So if there is V2 in the sentence, okay, so its helping verb is did. Okay, if there is V2 in the sentence, so its helping verb is did. Okay, this is the past simple. You can say past simple helping verb is did. Okay, so we will form did she। अब यहाँ पे देखो वेंट को हमें वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स। सो डिड शी गो टू मार्केट? क्या वे मार्केट गई थी? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ड्स वट एवर गिवन इन योर बुक, क्योंकि बिकॉज जब आप वर्ब आपको लर्न होगी तभी आप सेंटेंस को पहचान सकते हो कि किस तरह का सेंटेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। सो स्टूडेंट, फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, लाइक शी गोज टू स्कूल। ओके, दे completed his work. Okay, now he ran fast.
they studied hard. So listen student, here you have to check its verb. Okay, you can check these all verb second form is here. Okay, all verbs second form is here, like goes, sorry, here goes is the first, okay, first form of the verb, and we add here es to make it singular, because here it is singular subject. So es, okay, es is it has been made. स्टूडेंट यहाँ पे देखो, आप चेक करो एक सेकेंड, ES हमने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, शी गोज टू स्कूल, और यहाँ पे दे कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उन्होंने अपना काम कर लिया। ही रेन फास्ट, कि वो तेज़ दौड़ा। दे स्टडीड हार्ड, कि उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो यहाँ पे देखो ये V2 है, ये इसमें V2 है, यहाँ पे ये V2 है और यहाँ पे ये V1 है। I watch TV at 6 PM. ओके, मैं शाम को 6 बजे टीवी देखती हूँ। तो यहाँ पे ये वॉच क्या है, V1 है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव यूज्ड हियर V1 और I mean singular verb. Okay, so how to make its interrogative sentence? You have to check. First, you have to identify the sentence, because she goes to school. Here student, you have to check that यहाँ पे goes, she goes, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। क्या होती है, डू और डज। हम डू को तो हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज को यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे she क्या है, सिंगुलर है, सो डज। So if you want to form the interrogative, then does she go to school? Does she go to school? You have to put question mark. Okay, then they completed his work. They completed his work, here V2, there is V2. So here student, V2 it means this is simple past tense. Okay, so यहाँ पे सिंपल पास्ट की क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। इसमें विथ ऑल सब्जेक्ट हम इसमें डिड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखो सिंपल प्रेजेंट में तो आप शी के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, बट यहाँ पे आप सबके साथ में आप क्या करोगे, डिड ही यूज़ करोगे, ठीक है। सो डिड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे देयर आएगा, ठीक है, देयर वर्क। ओके, हियर ऑल्सो सेकेंड फॉर्म। सो सेकेंड फॉर्म की क्या होती है बेटा, जब डिड लगाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म करना है, ठीक है ना। जब हमने डिड यूज़ करी है ना, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट V1 यूज़ करेंगे। ये आपको रिमेंबर रखना, यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन वी यूज़ हियर डिड, ओके, टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन हियर ना, हियर इन मेन वर्ब यू हैव टू राइट V1। ओके, सो ही रेन फास्ट, सो डिड ही रन फास्ट, क्या वह तेज़ दौड़ा। कई बार आप पूछते हो ना, क्या वह तेज़ दौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस देखो आपको V1 लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड किया है, ठीक है। दे स्टडीड हार्ड, कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, ठीक है। दे स्टडीड हार्ड, तो यहाँ पे क्या करना आपको, डिड, वही आपके सेकेंड फॉर्म है, डिड दे स्टडी हार्ड, ठीक है। ओके, हियर आई वॉच,
यहाँ पे देखो आप चेक करोगे V1 है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हियर इज V1 इज ऑल्सो रिटर्न, ओके, बिकॉज आई इज हियर प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, बिकॉज यहाँ पे आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और आई हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे इसकी प्लूरल की क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू आई वॉच टीवी एट 6 PM। तो सो लाइक this is how you can make interrogative sentences. Okay student, I hope you will not find any problem, but for this you have to do practice. Without doing practice you can't solve this, you can't do this. Okay students, the more you practice the more you learn. Okay, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको लर्न आएगा, उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर V2 है देन इट्स हेल्पिंग वर्ब इज डिड, हम डिड को यूज़ करेंगे और वापस यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे V1 ही लिखना है। जब हम इसको डिड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वापस यहाँ पे क्या आएगी, V1 ही आएगी, ठीक है। फर्स्ट आपको टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है। लाइक सिंपल फ्यूचर एग्जांपल, दे विल गो टू मार्केट, ओके, आई शैल मीट यू tomorrow. So this is the simple future, okay, because shall is here helping verb of simple future, and here what was the structure of simple future, क्या structure था इसका, मैंने बताया था, है ना, I told you in your previous lecture when I explained tense chapter, okay, so will और shall, okay, हम I और V के साथ शैल को यूज़ करते हैं, आई और V के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, एंड बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हियर इज हेल्पिंग वर्ब इज विल, सो हियर यू हैव टू राइट हियर विल बिफोर द सब्जेक्ट, सो विल दे गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क यू हैव टू पुट, ओके, आई शैल मीट यू टुमारो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब दिस हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू राइट बिफोर द सब्जेक्ट, सो शैल आई मीट यू टुमारो, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। आई टोल्ड यू just simple present, how to make its interrogative, and simple past and simple future, okay. Let's see continuous, okay, he is dancing, he is dancing in the party, he is dancing in the party, then they are talking, with each other, okay student, here, so this is the present continuous, so how to make its interrogative, so you have to write this helping verb before the subject, because are is here, is here, helping verb, is and are here, helping verb. So when we form any sentence, first we have to write helping verb, okay. So is he dancing in the party, okay,
सो लाइक दिस, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, सेम रूल फॉलो करना है। आर दे टॉकिंग टू with each other? Okay, are they talking with each other? So this is how you can make interrogative sentences from the present continuous. Okay, so when you form interrogative sentence from the helping verb, students, when you form interrogative sentence with the helping verb, it means you want to know only yes or no. You want to know only yes or no. So you can say this is the yes or no type of questions. You can say this is the yes or no types of questions. If you want to know extra or more about someone or something, you have to add WH word also. Okay, you have to add WH word also before हेल्पिंग वर्ब. बस कुछ भी आपको नहीं करना है इसमें, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH वर्ड आपको यूज़ करना है. जैसे आप पूछना चाहते हो वेयर डज शी गो, वह कहाँ जाती है, देन देखो वेयर इसमें क्या है WH वर्ड, और डज तो आपको सेम वैसे यूज़ करना है, डज शी गो, वेयर डज शी गो, तो डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई और इससे पहले आपने यहाँ पे WH वर्ड यूज़ कर लिया, तो इट मीन्स वेयर डज शी गो, वह कहाँ जाती है. ये आपका आंसर येस और नो में नहीं हुआ, तो इसलिए आप इसको WH वर्ड क्वेश्चंस बोलोगे. ठीक है, और जो भी आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनाते हो, इट मीन्स यू वांट टू नो ओनली येस और नो, यू वांट टू नो ओनली येस और नो. Past continuous tense, you can check. They were playing. Here student, this is the assertive sentence. Okay, they were playing. So how to make its interrogative? It's interrogative, then you have to write this helping verb before the subject. So were they playing? क्या वे खेल रहे थे. अगर आपको यस और नो जानना है तो आप ऐसे पूछो क्या वे खेल रहे थे. अगर आपको इनके बारे में एक्स्ट्रा जानना है तो आप क्या यूज़ करोगे, WH वर्ड आपको यूज़ करना है. फिर इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक आपको पता करना है कि वो कहाँ खेल रहे थे. इफ़ यू वांट टू नो कि वेयर दे आर प्लेइंग, देन यू हैव टू यूज WH वर्ड. वेयर वर दे प्लेइंग. So like this we can use WH word. Okay, I hope you understood. Or future continuous tense, they will be watching TV. Okay student, दे विल बी वॉचिंग TV, वो TV देख रहे होंगे. तो आपको क्या करना है, हाउ टू मेक इट्स इंटरोगेटिव. विल आपको बिफोर द सब्जेक्ट लिखना है. अगर दो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है तो आपको फर्स्ट ही इसमें लिखना है. ठीक है, विल दे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, विल दे बी वॉचिंग TV, क्या वे TV देख रहे होंगे. तो इस तरह से आप इसमें आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, इन दिस ओनली यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस you have to learn the rule and you have to learn all the verb, because without learning verb you can't form any sentence, you can't identify. Okay, you can't identify कि which sentence is this, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या सिंपल का है, या फ्यूचर का है. ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मॉडल्स आते हैं, जैसे मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड,
ये आपके मॉडल्स होते हैं खूब, है ना, माइट होता है, इसमें कई मॉडल्स होते हैं बेटा। इनके बाद आपको ये भी आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब आप बोल सकते हो उनको, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इनको। तो इनके बाद जस्ट इनके बाद जैसे आपको सेंटेंस बदल शी कैन डांस, आप ऐसे लिखो शी कैन डांस, वह डांस कर सकती है। तो यहाँ क्या करना आपको, बस ये कैन आपको बिफोर द सब्जेक्ट आपको राइट डाउन करना, ठीक है। लाइक कैन शी डांस, ओके। सो लाइक they should help others, या you should help others, कि तुम्हें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे शुड है तो शुड को हम क्या करेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट डाउन, ओके। शुड यू हेल्प अदर, क्या तुम्हें दूसरे की मदद करनी चाहिए, यस और नो आंसर, ओके। और इफ़ यू वांट टू नो एक्स्ट्रा, ओके, कि वाई शुड यू हेल्प अदर, कि तुम्हें दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए, तो ये आप WH वर्ड यूज़ करके भी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, okay। And for this student you have to do practice. Without doing practice you can't learn anything. So for this you have to do practice. Those exercises are given in your book related of this chapter. You have to complete all exercises, okay। Only you have to remember only do does, where we use do does. If there is no helping verb in the sentence then we use do does। लाइक प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वहाँ पे हम डू डस का यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो उसमें हम डिड यूज़ करते हैं, ओके। डिड का यूज़ हम सारे ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, पर डू डस का यूज़ हम डू का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए और डस का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। आई और यू को भी प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है इसमें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग दिस रूल यू हैव टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, ओके। आई थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।